Hello friends, today I am going to discuss about Manipur Chakra. As its name reveals, Manipur, city of jewels, gems. This chakra is the chakra. Number one is Muladhar, root chakra. Number two is Swadhisthana chakra. But number three is Manipur chakra. It has 10 number of petals and it locates upper abdomen and below rib cage, means 2 finger above our navel. If it is good, then that person have self confidence, he have a good power of motivation, and that person will have a good digestion. Its color is bright sunlight yellow. When we are sitting in dhyan, then someday a bright sunlight yellow type thing appears in front of you. Closed eyes. Though it may happen earlier or not, but it happens. And that is the sign that you are now a sadhak and your energy is rising from one chakra to another chakra easily. If we will not increase our willpower, this chakra will not flourish. So, what we can do to flourish this chakra, to boost this chakra? We can chant Ram, Ram, Ram. So, how much we have to chant? That much is our age. If we are 10 years old, we can chant for 10 minutes. If we are 20 years old, you have to chant for 20 minutes. And for regular 21 days. This will bring some or the other changes in your life. What changes it will bring? It will bring you confidence, motivation, and improve your digestion. It will bring you self-esteem. It will bring you personal power. You will feel confident. So we can say it is energy powerhouse. This chakra is energy powerhouse. If someone have a blocked Manipur chakra, then that person will have low self-esteem. He will face some physical issues like fatigueness, poor digestion. So, boost our chakra, Manipur chakra, we have to make some affirmation. Number one affirmation is stand in front of a mirror and say to ourselves, I stand in my own personal power. I stand in my own personal power. We have to chant it 10 times. I am worthy. We have to chant it 10 times. I am worthy. I am worthy.
Next affirmation we have to do is I trust my decisions. I trust my decisions. And one more thing we can do Kapalbhati Pranayam. Kapalbhati Pranayam will stimulate the fire element of this chakra. So, how to do Kapalbhati? If you follow Baba Ramdev, then you can easily learn Kapalbhati Pranayam. And we have to regularly do it for 21 days if you want to see some changes. सरसों हथेली पर हरी नहीं होती है. The person who feel victimized, their Manipur chakra is not good. So we may say, if our Manipur chakra is good, then we will never feel victimized by any circumstances. We will always feel energetic if our chakra is good. There will be no fear of rejection in our mind, and there will be no digestive issue, no ulcer, no acidity. If we have acidity, then these are the symptoms of disbalance of Manipur chakra. But if we have eaten something oily one day before, then it is not a symptom of Manipur chakra disbalance. That is a physiological thing. If we will eat bad, then it will result bad. People who have psychological disorders, who blame their destiny, then this chakra is not good. So if we want to boost this chakra, we have to chant Ram, Ram, Ram. Okay friends, I want to ask one question. If you feel angry, then which chakra will be blocked? You can comment on this to check your knowledge. And if you cannot face trauma, then which chakra will be disbalanced? For my Hindi viewers, I will explain it in Hindi. दोस्तों, जो हमारे शरीर में दल कमल होते हैं, जैसे कि आपने किसी मंदिर में देखा होगा कि विष्णु भगवान के नाभि से एक दल कमल निकल रहा है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान। तो ये वही सांकेतिक भाषा है जो कि मूर्तियों से भी झलकती है। तो ये जो चक्रा होता है रम, तो ये 2 उंगल ऊपर, हमारी नाभि से 2 उंगल ऊपर की तरफ होता। और इसको अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो रम की साउंड हमें उच्चारण करनी है। जितनी आपकी उम्र है उतनी, और नहीं कर सकते तो कम भी कर सकते हैं, आधा भी कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन तक करनी। इसके 10 पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, और जो इसका रंग होता है, कलर, वो सनलाइट जैसा होता है। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठे होते हैं तो जो साधक वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं कोई निम्न कोटि का साधक या उच्च कोटि का साधक वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो एक बार साधना के रास्ते पे उतर गया वो उच्च कोटि का मनुष्य हो जाता है। तो जिसका
ये चक्र होता है, मणिपुर चक्र। ये संस्कृत वर्ड है, इसका अर्थ होता है कीमती पत्थर। क्योंकि जो समुंदर मंथन हुआ था तो उसमें से कीमती रत्न भी निकले थे। तो ये मंथन वही मंथन है जो हमारे विचारों का मंथन है, साइकोलॉजिकल। क्योंकि जो हमारा ध्यान है वो साइकोलॉजिकल है, दिमाग से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है, ये साइकोलॉजिकल नीड है, भक्ति। और ये हमारे, ऐसा नहीं है कि ये हम कुछ कर रहे हैं और हमें महसूस नहीं होगा, ये हमें अपनी बॉडी पे महसूस होगा। हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, किसी देवता की पूजा करने पे हमें कोई एनर्जी अच्छी फील होती है, किसी देवता की पूजा में कोई एनर्जी फील होती है। तो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, जो बहुत साल से, वो सामने वाले को देखकर भी पता लगा लेते हैं कि इसका कौन सा चक्र डिसबैलेंस है। 10 मिनट बात करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे इसकी क्या समस्या है और कैसे दूर होगी। बट हमारे पास अपने लिए समय नहीं है, हमारे पास संसार के लिए समय है। तो जिसका ये तीसरा चक्र डिसबैलेंस होता है, जिसको हम डिटेल में जानेंगे, तो ये मणिपुर चक्र है। तो जिस व्यक्ति का ये चक्र ठीक नहीं होता है तो वो अपनी ही इज्जत खुद नहीं करता है। तो जो अपनी ही इज्जत खुद नहीं करेगा तो समाज उसकी क्या इज्जत करेगा। उसकी विल पावर बिल्कुल हल्की होती है, होगा नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। कहीं जाना भी होगा तो नहीं, मैं जाके क्या करूँगा, इतनी देर, मतलब हर चीज़ से अपना पीछा छुड़ाता है। उसमें कॉन्फिडेंस की जो है कमी हो जाती है, मोटिवेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। और धीरे धीरे फिर जब ऐसा होता है तो ये समस्या 1-2 दिन की नहीं होती है, फिर जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मोटिवेशन होता नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता नहीं है, एकांत पसंद आने लग जाता है, घर में पड़े रहते हैं सुबह से शाम तक। तो ये हमारी दिक्कत बन जाती है। फिर यदि हम मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो क्या करें, तो हमें कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति मणिपुर चक्र को ठीक करता है। हमें रम 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 दीर्घ स्वर में, मतलब लंबे स्वर में इसका उच्चारण करना चाहिए, उससे हमारा मणिपुर चक्र ठीक होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो हमारे सुंडी होती है, जहाँ हमें माँ से जुड़े होते हैं, उससे 2 उंगल ऊपर इसका स्थान होता है। वहाँ हमें कभी हीट भी फील हो सकता है, कभी ठंडक भी फील हो सकती है। अगर हीट फील होती है तो ये हमारा ब्लॉक है, अगर ठंडक फील होती है तो हमारा अच्छा है ये। तो डाइजेशन और इनडाइजेशन क्या, अगर हमारा पेट भरा भरा सा रहता है तो ये चक्र हमारा ठीक नहीं है। और हमारा अगर कितना भी खाना खा ले, हमारा पेट एकदम नरम है बिल्कुल, तो फिर ये चक्र हमारा अच्छा है। और यदि हम ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप बजरंग बाण गा के देखें, आपका पेट कितना भी टाइट होगा एकदम नरम हो जाएगा। और हनुमान अष्टक भी आप गा के देख सकते हैं। क्योंकि जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप हनुमान जी का नाम पुकारते हैं या गणेश जी का नाम पुकारते हैं तो उससे भी ये चक्र ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि कुंभकर्ण का भी अगर हम नाम पुकारते हैं, भले ही वो रावण का भाई था लेकिन वो वैसे धर्म के पक्ष में था, लेकिन भाई के लिए उसने अपने भाई को चेताया रावण को कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया है, लेकिन अगर मैं मारा जाऊं तो समर्पण कर तो राम के चरणों में समर्पण कर देना, जिससे कि तुम्हारी जान बच जाएगी, कुल कुटुंब का नाश नहीं होगा। लेकिन क्योंकि रावण तो रावण ही था, तो
कुंभकर्ण का नाम लेने से, हनुमान जी का नाम लेने से, गणेश जी का नाम लेने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी आप खाना खाते हैं और आपको थोड़ा अनईज़ी फील होता है तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं या रम 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 का पाठ कर सकते हैं, तो इससे रिलीफ मिलता है। आपका ये चक्रा जो है मजबूत होता है। इसकी 10 पंखुड़ियाँ होती हैं।